children, hope all of us are doing good. The topic that we will study today is the sun, moon and stars. And the things we will learn are solar system, the sun, planets, moon and stars. Now during the night, we can see the moon and stars in the sky. During the day, we can see the sun in the sky. So let us learn more about these objects in the sky. तो जो चीज़ें हमें ऊपर आसमान में नज़र आती हैं, sun, moon, stars, इनके बारे में जानते हैं. Let us look at the solar system. The sun and all the bodies that move around the sun together form the solar system. तो ये जो सन है और इसके आसपास जितने भी ये प्लैनेट्स या बाकी बॉडीज मूव कर रही हैं, ये मिलाकर के हमारा सोलर सिस्टम बनता है. The sun. The sun is a star. It is made up of very hot gases. It gives out light and heat. अब सन है क्या? ये एक्चुअल में एक स्टार है और ये बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस से बना होता है. और सन से हमें तो दो चीज़ें मिलती हैं, सबको पता है, लाइट और हीट. देन वी हैव दी प्लैनेट्स. प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स. ये जो आप इमेजिनरी गोल लाइनें देख रहे हैं ना, ये इन प्लैनेट्स के ऑर्बिट हैं. एक्चुअल में लाइनें नहीं हैं, ये इमेजिनरी हैं. तो प्लैनेट्स जो हैं एक फिक्स्ड पाथ में, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, उस पाथ में सन के इर्द गिर्द घूमते हैं. प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. इनकी अपनी रोशनी नहीं है, लेकिन जो सन की लाइट इन पे पड़ती है ये उसको रिफ्लेक्ट करते हैं. देयर आर अ टोटल ऑफ 8 planets which move around the sun. The 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. The sun and its 8 planets together form the solar system. तो ये सन, इसके बाद मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, सन और इसके ये जो 8 प्लैनेट्स हैं ये मिल करके हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं. ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन इट्स ओन ऑर्बिट. नाउ इट इज अ फैक्ट, orbits are imaginary paths that the planets take to move around the sun. They do not actually exist. Think tank. The sun is a star and we get heat and light from it. Why don't we get heat and light from the other stars in the sky? Now let us look at the moon. The earth moves around the sun. In a similar way, the moon moves around the earth. The moon is our nearest neighbor in the sky. The moon is a satellite of the earth. A satellite is an object that moves around a planet. Different planets have different number of moons. Earth has only one moon. The moon does not have its own light. It reflects the light of the sun. तो जैसे अर्थ और बाकी के प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसी तरह से मून जो है अर्थ की सैटेलाइट है और अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है. जितने प्लैनेट्स हैं उनमें से कुछ प्लैनेट्स के मून हैं, कईयों के नहीं हैं, और ज़रूरी नहीं कि सबका एक ही मून हो. अलग अलग नंबर में सबके अपने सैटेलाइट्स या मून हैं. तो वो हेवनली बॉडी जो किसी प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमती है उसको सैटेलाइट कहते हैं. अर्थ की सैटेलाइट एक है जिसे हम मून कहते हैं. नाउ इट इज़ अ फैक्ट, humans have created many artificial satellites that have been sent out to orbit around the earth to collect data. The first artificial satellite, Sputnik 1, was sent by the USSR. तो जैसे मून एक सैटेलाइट है, ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ह्यूमन बींग्स ने बना के स्पेस में भेजी हैं जो अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं. नाउ लेट अस लुक एट द सरफेस ऑफ द मून. The moon's surface has huge and deep holes called craters. The moon also has mountains. There is no air on the moon. तो अगर आप मून की सरफेस को देखेंगे, वहाँ पे आपको इतने बड़े बड़े गड्ढे नज़र आएंगे जिन्हें क्रेटर्स कहते हैं. मून पे माउंटेन्स भी हैं लेकिन हवा नहीं है. Let us look at the phases of the moon. Sometimes the moon appears round like a ball. Sometimes it looks like a semicircle and sometimes we do not see it at all. The shape of the moon seems to be changing every night. The different shapes of the moon that we see every night are called
phases of moon. The different amount of the moon's face is lit up by the sun depending on the position of the moon. This is why the moon appears to change its shape. When the moon appears as a circle, it is called full moon. When the moon cannot be seen even on a clear night, it is called new moon. When the moon appears to look like a semicircle, it is called half moon. तो होता क्या है, मून की अपनी रोशनी नहीं है, लेकिन मून के ऊपर सन की लाइट पड़ती है जो रिफ्लेक्ट होके हमें नजर आती है. अब मून क्या है, वो अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर काटता है. तो डिपेंडिंग कि मून की पोजीशन कहाँ है, उसके कितने हिस्से पर लाइट पड़ रही है, हमें उतना ही हिस्सा नजर आता है. मान लो पूरे मून के ऊपर लाइट पड़ रही है तो हमें फुल मून यानी कि ऐसा गोल आकार वाला मून नजर आता है. मान लो मून के खाली आधे हिस्से में लाइट पड़ रही है तो हमें सिर्फ सेमी सर्कल की फॉर्म में नजर आता है. और जब मून के किसी भी हिस्से पे सन की लाइट नहीं पड़ती तो हमें वो मून नजर ही नहीं आता और इसको न्यू मून कहा जाता है. और ये जो अलग अलग हमें शेप्स नजर आती हैं, इन्हें फेजेस ऑफ मून कहा जाता है. नाउ लेट अस लुक एट द स्टार्स. वी कैन सी थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स twinkling in the sky on a clear night. Like the sun, stars also have their own light. Some stars are bigger and brighter than the sun, but they appear small and dim because they are very far away from the earth. अब अगर हम रात को आसमान में देखें तो बहुत सारे तारे हमें चमकते हुए नजर आते हैं. जो सन है वो भी एक्चुअल में एक स्टार ही है, लेकिन जो बाकी के हमारे स्टार्स हैं वो हमें ज़्यादा छोटे नज़र आते हैं क्योंकि वो बहुत दूर हैं, इसलिए वो हमें इतने ज़्यादा चमकते हुए भी नज़र नहीं आते. हालांकि बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जो शायद सन से भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं और बहुत ज़्यादा चमकते हैं, पर उनका हमारी अर्थ से डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि वो छोटे और थोड़े हल्के नज़र आते हैं हमें. नाउ लेट अस लुक एट दी constellations. Groups of stars forming a pattern in the sky are called constellations. कई बार हमें अगर हम रात को आसमान में देखें तो कुछ स्टार्स जो हैं उनसे कोई शेप बनी हुई नज़र आती है. इस शेप को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. यहाँ पे बहुत सारे तारे इकट्ठे मिलके ये शेप्स ही हमें सजेस्ट करते हैं. The patterns of the constellations mostly take the shape of an animal, a human being और a mythological figure. ज़्यादातर ये हम पैटर्न या जो शेप है ये किसी जानवर की हो सकती है, इंसान की हो सकती है या फिर किसी mythological figure की हो सकती है. They have been named according to their forms. For example, the constellation that seems to look like the outline of a bear is called the Great Bear. Other famous groups of stars that have been given such names include the Little Bear and the Orion, that is a hunter. So अगर आप ये इमेजेस देखें तो यहाँ पे आपको इमेज में लिटिल बेयर नज़र आएगा. ये अलग अलग तारे हैं जिनके आसपास हमें ये एक इमेजिनरी फिगर नज़र आती है. और ओरायन जो है वो एक हंटर की फिगर है. इसी तरह से ग्रेट बेयर की फिगर भी हम देख सकते हैं कॉन्स्टिलेशन अगर ये हमें नज़र आए तो. इट इज़ अ फैक्ट a telescope is an instrument that is used to see distant objects such as planets, moons and stars in the sky. It makes the distant objects visible. Now here is a very smart way to remember the names of the planets. If you remember this sentence, my very energetic mother just sent us nuts. ये एक सेंटेंस याद करिए. सो माई का जो पहला अल्फ़ाबेट या लेटर है M, उससे क्या बनता है मरकरी. फिर V से वीनस. इसी तरह से एनर्जेटिक का E लेंगे तो अर्थ बनेगा. मदर के M से मार्स बन जाएगा. जस्ट के J से जुपिटर बनेगा. सेंट के S से सैटर्न बन जाएगा. अस के U से यूरेनस बनेगा और नट्स के N से नेपट्यून बन जाएगा. तो कितना आसान वे है ना सारे प्लैनेट्स के नाम याद रखने का. सो लेट अस टेक अ क्विक रीकैप नाउ. The sun and all the bodies that move around the sun together form the solar system. Each planet moves around the sun in its own orbit. The moon is our nearest neighbor in the sky.
The different shapes of the moon that we see every night are called phases of the moon. When the moon cannot be seen even on a clear night, it is called new moon. So I hope that this chapter is clear to all, and answering questions based on this chapter will now be easy.